মোদী স্বাগতম, ভারত মায়ের সুযোগ্য সন্তান নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, নদিয়ার পুণ্যভূমিতে নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম, কৃষ্ণনগরের পুণ্যভূমিতে নরেন্দ্র মোদী স্বাগতম। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের এতক্ষণের আকাঙ্ক্ষিত, আমাদের সকলের প্রিয় ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি। এখন মোদীজিকে ফুলের মালা দিয়ে আমাদের যে নদিয়া উত্তর এবং দক্ষিণ 14টা বিধানসভার প্রার্থী আছেন তারা বরণ করে নেবেন। তাদেরকে বলবো মোদীজিকে ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। এখন আমাদের নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্মানীয় সভাপতি অর্জুন কুমার বিশ্বাস মহাশয় একটি মোমেন্টো দিয়ে মোদীজিকে বরণ করে নেবেন। সবাইকে বলবো মঞ্চে যারা উপবিষ্ট রয়েছেন সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ তাদের সবাইকে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করব এবং অর্জুন কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে মোমেন্টো মোদীজির হাতে তুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। অনেক অনেক ধন্যবাদ অর্জুন কুমার বিশ্বাস মহাশয়কে। এবার আমাদের নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার, নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভানেত্রী সম্মানীয়া অপর্ণা নন্দী মহাশয় একটি মোমেন্টো মোদীজির হাতে তুলে দেবেন। তার সাথে অনল বিশ্বাস মহাশয় আছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ অপর্ণা নন্দী মহাশয়াকে। এবার একটি সুন্দর শঙ্খর মোমেন্টো মোদীজির হাতে তুলে দেবেন আমাদের নদিয়া বিভাগের কনভেনার সম্মানীয় রামপদ দাস মহাশয়কে। রামপদ দাকে বলবো জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। এখন আমাদের মধ্যে স্বাগত ভাষণ রাখবেন আমাদের রানাঘাট লোকসভার লোকপ্রিয় সাংসদ সম্মানীয় জগন্নাথ সরকার মহাশয়। জগন্নাথ সরকার মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব। भारत माता के वंदे वंदे। मोदी जी, मोदी जी धन्यवाद। আমরা সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। এখানে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, পুণ্যভূমিতে ভগবান বারে বারে জন্মগ্রহণ করেন এই ভারত ভূমিতে। তেমনি মানুষেরাও যুগ যুগান্ত কাল ধরে তারাও
জন্মান্তরবাদ অনুসারে এই ধরাধামে আবির্ভাব ঘটেন। ধর্ম রক্ষার জন্য আমরা জানি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে কথাটি বলেছেন যে যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভ্যুত্থানায় অধর্মস্য তদাত্মাত্মম সৃজাম্যহম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে। তাই স্বয়ং ভগবান যেমন আমরা জানি ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র রূপে, তারপরে কৃষ্ণ রূপে কলিযুগের অবতার হয়েছেন, তেমনি আমাদের পবিত্র নদিয়ার মাটিতে নবদ্বীপের ভূমিতে পুণ্যভূমিতে, তাই নদিয়াবাসী হিসাবে আমরা গর্বিত। সেই পুণ্যভূমির মাটিতে আমাদের সারা বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা এবং ভারতের সেরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর মোদীজিকে এই ভূমিতে করতালির মাধ্যমে তাকে আমরা স্বাগত জানাই। এই যুদ্ধে আমাদের মধ্যমণি বাংলার যিনি নেতৃত্ব এখন দিচ্ছেন 294 সিটে তিনি প্রার্থী, আর আমাদের প্রতীক একটা, আর সেটা হলো প্রতীক পদ্ম ফুল। দুই পাশে সপ্তরথী রয়েছে, নদিয়া দক্ষিণের সপ্তরথী রয়েছেন এবং বাঁ পাশেও সপ্তরথী রয়েছেন, যারা এই যুদ্ধে তারা এক একটা বিধানসভার মূল নেতা, যারা আগামী দিন এখানে আমরা নদিয়া জেলা চৈতন্যর ভূমিতে অত্যাচারী আমরা কৌরবের বংশধরদের এখান থেকে এই যুদ্ধে শূন্যতে পরাজিত করে পদ্ম প্রতীকে জয়লাভ এনে দেব, এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমরা বাড়ি গিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আর উত্তরের সেনাপতি রয়েছে যেমন আমাদের জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, দক্ষিণের সেনা নেত্রী রয়েছেন আমাদের শ্রীমতী অপর্ণা নন্দী মহাশয়া। তাই এদের নেতৃত্বে যুদ্ধ চলবে এবং আমাদের মূল নেতা যিনি অন্তর থাকে পেছন থেকে আরো চালাচ্ছেন তিনি রামপদ দা। পেছনে যারা রয়েছেন তারা ভূমি দখলের জন্য তারা রয়েছে, আগামী দিন তারা পেছনে আস্তে আস্তে তাদেরকে এগিয়ে দিয়ে এখান থেকে তৃণমূল শূন্য করবে, এটাই ইচ্ছা। চৈতন্যের ভূমিতে আমরা জানি চৈতন্যদেব কেন আবির্ভাব হয়েছিলেন। যখন চাঁদ কাজী যখন ইসলাম ধর্মে ছাড়া আর কিছু থাকবে না বলেছিলেন এখানে রাম নাম কৃষ্ণ নাম নেওয়া যাবে না। আমরা জানি দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় প্রথম ইসলামিক আবির্ভাব ঘটে। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি লালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে জলপথে ওই বক্তার ঘাট দিয়ে উঠে ঘোড়া বেঁধেছিলেন ঘোড়ালিয়া, তারপর অতর্কিতে সেন বংশকে পরাজিত করে ইসলামের চাষ শুরু করেছিলেন। আর চাঁদ কাজী বলেছিলেন এখানে রাম নাম কৃষ্ণ নাম চলবে না, তাই সনাতন ধর্ম রক্ষার জন্য চৈতন্যদেব আবির্ভাব হয়েছিলেন। আবির্ভাব হয়ে ওই হরে কৃষ্ণ নাম তৈরি করে তিনি ওই চাঁদ কাজীর বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন। ধর কাজীকে মর কাজীকে বলে ওই দত্ত ফুলিয়া থেকে মশাল মিছিল করে খোল করতাল নিয়ে ঘেরাও করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন চাঁদ কাজীকে আমি সামান্য কোনো ব্যক্তি নয়, আমি সেই বিষ্ণুর অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাতে যেমন সুদর্শন ছিল, তিনি সুদর্শনকে দেখিয়েছিলেন বলে প্রথম আমরা দেখলাম ইসলাম থেকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন চৈতন্যদেব। তিনি ব্রাহ্মণদের অহংকার চূর্ণ করেছিলেন, হিন্দুদের একত্রিত করে রাস উৎসব করেছিলেন। তিনি বলে গেছেন
সঙ্গ শক্তি কলৌ যুগে, অর্থাৎ সংগঠিত শক্তি কলি যুগের উদ্ধারকর্তা। তাই আমরা জানি মোদিজির নেতৃত্বে যেভাবে আমাদের দেশ এগিয়ে চলেছে, বাংলা পিছিয়ে পড়েছে, তাই বিজ্ঞাপন দিতে হচ্ছে এগিয়ে বাংলা। এগিয়ে বাংলা নয়, বাংলা সোনার বাংলা ছিল, আজকে সোনার কারখানা বাংলায় ছিল। তাই ফরাসিরা এসছে, ইংরেজরা এসছে, বারে বারে এই দখলের দেশ দখলের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানেই ছিল রাজধানী। বাংলা আজকে পিছিয়ে পড়েছে। আজকে পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে এই মমতা এবং সিপিএম এর জন্য আজকে তারা বাংলা ছাড়া হয়ে গুজরাটে যাচ্ছে, মধ্যপ্রদেশে যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রে যাচ্ছে কাজ করতে। এটা আমাদের লজ্জা। তিনি আবার বাংলা নিয়ে কথা বলেন, বাঙালির গর্বের কথা বলেন, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। তাই পরিযায়ী শ্রমিকরা তারা দলে দলে আসছে, বলছে, এবার আওয়াজ তুলছে, জয় শ্রীরাম। তারা দিদিকে হারানোর জন্য আসছে। আমি আমার বক্তব্যকে আর দীর্ঘায়িত করব না। আমরা সেই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, সনাতন ধর্মকে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য হিন্দু ধর্ম গন্ধা ধর্ম, যিনি বলেন রাম নাম কৃষ্ণ নাম গালি, রাম নাম খিস্তি, কনভয় থামিয়ে আমরা জানি তারা করেন। তার মধ্যে কাজীর প্রেতাত্মা ভূত নির্ভর করছে। তাই ভূত তাড়ানোর জন্য আমরা 29 এবং আজকে মিলে সবাই পদ্মপতিকে ছাপ দিয়ে বাংলা থেকে ভূত তাড়িয়ে ছাড়বো। ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতায় বসাবো, তৃণমূলের চিহ্ন থাকবে না, এই শপথ নিয়ে ময়দান ছাড়বো। আমি আমার বক্তব্য এইটুকু বলেই শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কে। অনেক অনেক ধন্যবাদ জগন্নাথ সরকার মহাশয়কে। আমরা দীর্ঘক্ষণ যার জন্য অপেক্ষা করে আছি, এই দাবাদহের মধ্যেও আপনারা যার বক্তব্য শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন, আমাদের প্রত্যেকের প্রিয়, আমাদের ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সম্মানীয় নরেন্দ্র মোদীজি আজকে আমাদের সকলের সঙ্গে এই মঞ্চে উপস্থিত আছেন। আমরা প্রত্যেকে মোদীজির জন্য একবার জোরে বলবো, মোদীজি জিন্দাবাদ, মোদীজি জিন্দাবাদ। আরো জোরে, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। এখন আমাদের সামনে বক্তব্য রাখছেন দেশের সম্মানীয় সভাপতি নরেন্দ্র মোদীজি। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं मेरा भाषण प्रारंभ करूं उसके पहले मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे मेरे बाल मित्र, हमारी बेटियां बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना करके ले आए हैं। कुछ लोगों ने मेरी मां का भी चित्र बनाया है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे एसपी जी के लोग इनको कलेक्ट कर लेंगे, उनको दे दीजिए, ये मुझे पहुंच जाएगा। और अगर पीछे आपने अपना नाम पता लिखा है तो मैं जरूर आपको धन्यवाद की चिट्ठी भेजूंगा। और मैं एसपी जी के लोगों को भी कहूंगा, सारे कलेक्ट कर लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है उनसे मेरा आग्रह है, जो कैंडिडेट है वो जरा आगे आ जाए। जो उम्मीदवार है इस चुनाव में, असेंबली का चुनाव जो लड़ रहे हैं, मैं जरा हमारे उन उम्मीदवारों को मिलकर के आता हूं। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय गौरांग महाप्रभु। আমার সকল বাঙালি ভাইও বোনেদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। साथियों, आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग चल रही है। आज तमिलनाडु में भी मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाता साथियों का अभिनंदन करता हूं। मेरा सभी मतदाताओं से आग्रह है, इस बार मतदान के नए रिकॉर्ड बनने चाहिए। लोकतंत्र का ये उत्सव हमें पूरे जोश से मनाना है। और मैं देख रहा हूं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, मैं शायद कह सकता हूं ये पहला ऐसा चुनाव है पिछले 50 साल में, पिछले 50 साल में ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें हिंसा कम से कम हुई है। वरना हर हफ्ता किसी को फांसी पर लटका देते थे और बोल देते थे आत्महत्या कर दी। यानी एक प्रकार से गुंडा राज चलता था। मैं इलेक्शन कमीशन का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की फिर से एक बार बंगाल की धरती पर प्रतिष्ठा की है। शांतिपूर्ण मतदान करवाने में इलेक्शन कमीशन की ये सफलता, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। मैं यहां के सरकारी कर्मचारियों का भी अभिनंदन करता हूं कि वे भी इस बार शांतिपूर्ण मतदान में बहुत जिम्मेवारी पूर्वक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। और अब तक की जो मुझे जानकारी मिली है, मतदान भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। साथियों, नादिया ये भक्ति की धरती है, शक्ति, क्रांति और संस्कृति की ये धरती है। और आज इस धरती पर मैं परिवर्तन की आंधी देख रहा हूं। ये परिवर्तन की आंधी है। कृष्णा नगर में आज भय पर भरोसे की विजय का विश्वास दिख रहा है। ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश, ये भरोसे का है। भय जा रहा है, भरोसा आगे बढ़ रहा है। बरसों से जिनकी आवाज को दबाकर रखा गया था, वो अब एक सुर में बोल रहे हैं, गांव गांव बोल रहे हैं, गली गली बोल रहे हैं, स्त्री पुरुष सब बोल रहे हैं, युवा बुजुर्ग सब बोल रहे हैं,
एक ही आवाज, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार। साथियों, कुछ दिनों पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। बेटे गिर जाओगे, बैठो बेटा, परमात्मा आपको सुखी रखे। बैठो बेटा, गिर जाओगी। अरे आपके हाथ में जो कमल है ना, वो खिलने वाला है। बैठो बेटा, कहीं ऐसा है, आप बैठिए अपनी जगह पे, कहीं चोट लग जाएगी। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चितो। साथियों, 15 साल पहले वाम के विरुद्ध जनता ने बिगुल फूंका था। आज तृणमूल के जंगल राज के विरुद्ध बंगाल की जनता हर गली मोहल्ले में शंख फूंक रही है। जनता जनार्दन मैदान में है। मैं देख रहा हूं, ये चुनाव हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, न मोदी लड़ रहा है, न मेरे साथी लड़ रहे हैं। इस बार बंगाल का चुनाव बंगाल की जनता जनार्दन लड़ रही है। चुनाव का नेतृत्व बंगाल की जनता जनार्दन के हाथ में है। मैं जहां भी जा रहा हूं, लोग एक ही बात कहते हैं कि अब बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, और नय, अनेक खोलो,
और नॉय 15 साल बाद ये साफ साफ दिख रहा है। बंगाल के किसान खेत से लेकर मंडी तक हर भय से मुक्ति के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के सरकारी कर्मचारी टीएमसी के भय से बाहर निकलने के लिए वोट दे रहे हैं। बंगाल के डॉक्टर भय से मुक्त होकर एक बेहतर सिस्टम के लिए वोट दे रहे हैं। यहां के वकील सच्चा न्याय दिलाने के लिए वोट दे रहे हैं। शिक्षक भय मुक्त स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए मतदान कर रहे हैं। दुकानदार, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले टीएमसी के सिंडिकेट से मुक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। और बंगाल की पुलिस भी गुंडों से आदेश लेने के बजाय जनता की सेवा के लिए वोट डाल रहे हैं। यानी बंगाल में हर क्षेत्र, हर वर्ग अब बीजेपी के भरोसे को एक मौका देना चाहता है। हर कोई कह रहा है भय आउट, भय 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 भरोसा भरोसा बीजेपी को बीजेपी को बीजेपी को साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की पहचान है झूठ बोलो, झांसा दो। 15 साल के इनके हर वादे आधे अधूरे हैं। आप इनके महाझूठ देख लीजिए। इन्होंने हर ब्लॉक में मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाने की घोषणा की थी, लेकिन हुआ क्या? बंगाल में सैकड़ों स्कूल बंद हो गए। साथियों, टीएमसी ने घर घर पाइप से पानी पहुंचाने का वादा किया था। हर घर नल तो नहीं पहुंचा, लेकिन जल भराव का गंदा पानी आपके घर द्वार तक जरूर आ गया। साथियों, टीएमसी ने 10 लाख एमएसएमईज और हजारों बड़े उद्योग लगाने का वायदा किया था, लेकिन बीते सालों में यहां हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। जूट मिलों में ताले लगा दिए गए। साथियों, यहां आप सभी को अस्पताल से जुड़ी कितनी सारी परेशानियां हैं। टीएमसी की दुर्नीति ऐसी है कि इन्होंने कल्याणी एम्स के लिए भी कदम कदम पर रुकावटें डाली, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके बावजूद एम्स पूरा किया और आज ये एम्स आपको अपनी सेवाएं दे रहा है। लेकिन साथियों, तृणमूल के दुबुलिया के टीबी अस्पताल के साथ क्या किया, ये आप सभी जानते हैं। हर चुनाव में इस अस्पताल को लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन आज तक
वो वादे पूरे नहीं हुए। साथियों, टीएमसी का लूट का मॉडल यहां की नगरपालिका में सबने देखा है। ये शहर बेहाल है। सड़कें, ड्रेनेज, नदी से होने वाला कटाव, यानी चारों तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। लेकिन टीएमसी के लोग सिर्फ लूटने में ही बिजी है। साथियों, कृष्णा नगर की पहचान यहां की नदियों से है। जलंगी नदी, जिसे हम प्यार से खोरे कहते हैं, आज बहुत बड़ी स्थिति में पहुंच गई है। अंजना नदी को तो लैंड माफिया ने चुरा ही लिया है। निर्मम सरकार में नदियां भी सुरक्षित नहीं है। साथियों, टीएमसी का ये महाजंगल राज अब नहीं चलेगा। এইসব চলবে না। এইসব कानून अत्याचारियों और भ्रष्टाचारियों का पूरा हिसाब करेगा। जिसने आपको लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, मोदी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। और निर्मम सरकार कहती है, करती है, घुसपैठियों का साथ, घुसपैठियों का विकास। तृणमूल के लोग घुसपैठियों को फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने की दुकानें चलाते हैं, घुसपैठ कराते हैं, यहां उनको झुग्गियों में बसाते हैं। टीएमसी की ऐसी हर दुकान को बंद करना जरूरी है। सीमा तभी सुरक्षित रहती है जब पुलिस, सेना, बीएसएफ और नागरिक ये सभी मिलकर काम करते हैं। 4 मई के बाद बंगाल में भी सुरक्षा की नई गारंटी शुरू होने वाली है। साथियों, मैं श्री हरिचांद ठाकुर, श्री गुरुचांद ठाकुर और बोरो मां को प्रणाम करते हुए एक भरोसा देने यहां आया हूं। हमारे किसी भी मतुआ परिवार, नामशूद्र परिवार, शरणार्थी परिवार को तृणमूल से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। जो भी शरणार्थी है, जो भी धर्म के आधार पर हुई प्रताड़ना के कारण, मुसीबतों के कारण, अपने धर्म के प्रति स्वाभिमान के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ खड़ा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही सीएए के तहत नागरिकता देने का काम और तेज होगा। आपको हर वो कागज मिलेगा, हर उस योजना का लाभ मिलेगा
जो किसी भी भारतीय को मिलता है, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज का बहुत बड़ा नुकसान हमारी बहनों बेटियों को उठाना पड़ा है। हंसखाली में एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप और हत्या, ये टीएमसी के भय वाले मॉडल का ही उदाहरण है। यहां बेटियों की तस्करी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। इस भय से बंगाल की बेटियों को मुक्ति चाहिए। साथियों, टीएमसी बंगाल की बहनों का सच्चा सशक्तिकरण कभी भी नहीं कर सकती। इसका उदाहरण आपने पिछले हफ्ते संसद में भी देखा है। बीजेपी संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना चाहती है। संसद में इस पर चर्चा हुई, लेकिन टीएमसी नहीं चाहती कि बंगाल की बहनों को ज्यादा सीटें मिले। इसलिए इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर संसद में कानून को रोक दिया। बंगाल की हर महिला टीएमसी को इस अपराध की सजा जरूर देगी। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने बंगाल के लोगों को 6 गारंटी दी थी। आज मैं बंगाल की बहनों को 10 गारंटी देता हूं। पहली गारंटी, बंगाल में बहन बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हर ब्लॉक में महिला थाने बनेंगे और सड़क पर सुरक्षा के लिए विशेष दस्ते बनाए जाएंगे। दूसरी गारंटी, बंगाल पुलिस में बेटियों की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। तीसरी गारंटी, बंगाल बीजेपी के मातृशक्ति भरोसा कार्ड से 1 साल में 36,000 रुपये सीधे महिलाओं के बैंक खाते में भेजे जाएंगे। चौथी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार बेटियों को ग्रेजुएशन के लिए 50,000 रुपये की मदद देगी। पांचवी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार गर्भवती माताओं को 21,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी। छठी गारंटी, बंगाल बीजेपी सरकार शिशुओं के बेहतर पोषण के लिए 36,000 रुपये अतिरिक्त देने वाली है। सातवीं गारंटी, सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। किसी भी योजना में जितना ब्याज नहीं मिलता है, इतना ब्याज ये सुकन्या योजना में मिलेगा। आठवीं गारंटी, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन दिया जाएगा।
और उसकी गारंटी मोदी देगा, मोदी देगा। साथ ही लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाने के लिए भी मदद दी जाएगी। 9वीं गारंटी बंगाल की करोड़ों बहनों बेटियों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर का मुफ्त टीका और सिकल सेल की मुफ्त जांच भी बेटियों को मिलेगी। 10वीं गारंटी पीएम आवास योजना के तहत बंगाल के गरीब परिवारों की बहनों के नाम पर घर की रजिस्ट्री होगी, मालकिन का हक बहनों को मिलेगा। घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए सीधे बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। और साथियों, ये मोदी की 10 गारंटी और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, यहां कृष्णानगर के घुर्णी के कलाकार का दर्द किसी से छिपा नहीं है। जिनकी कला की पूरी दुनिया कायल है, जो अपनी कला से मिट्टी में प्राण फूंक देते हैं, उनके बनाए मिट्टी के पुतले आज आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। और यहां की निर्मम सरकार ने उन्हें क्या दिया? टीएमसी सरकार ने उनके जीवन को बेजान बना दिया है। अपने ऐसे ही भाई बहनों के लिए हमने पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू करके उन्हें आर्थिक मदद देने का अभियान चलाया है। लेकिन यहां की सरकार विश्वकर्मा योजना को बंगाल में लागू नहीं होने दे रही। साथियों, मोदी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के जरिए लोकल को वोकल और वोकल को ग्लोबल बनाने का प्रयास कर रहा है। वहीं निर्मम सरकार ने पूरे बंगाल में एक ही काम किया है। 15 साल में एक ही काम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सिंडिकेट। ये सिंडिकेट बनाने का उद्योग और सिंडिकेट के द्वारा बंगाल को लूटने का कारोबार। साथियों, इस धरती के बारे में कहा जाता है, धोनो धन्नो पुष्पे भोरा अमादेरी बसुंधरा। ये सिर्फ गीत के बोल नहीं है, ये बीजेपी का संकल्प है। बीजेपी सही मायने में बंगाल को समृद्धि का प्रदेश बनाना चाहती है। हमारे आलू किसान, हमारे धान किसान और हमारे जूट किसान, जूट श्रमिक, मैं सभी को भरोसा देता हूं कि आपकी हर समस्या का ईमानदारी से समाधान किया जाएगा। साथियों, कृष्णानगर में ही खेड़ी साहब की वो कोठियां थी जहां हमारे किसान भाइयों को नील की खेती के लिए जंजीरों से बांधकर कोड़े मारे जाते थे। और मैं आज कृष्णानगर में देख रहा हूं
जैसे हमारे पूर्वजों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी थी, वैसे ही बंगाल की जनता निर्मम सरकार की बनाई भय की बेड़ियों को तोड़कर फेंकने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, डबल इंजन सरकार डबल तेजी से बंगाल का विकास करेगी। इसके लिए इन सभी साथियों को हर बूथ पर विजयी बनाना होगा। बनाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे, एक एक मतदाता को समझाएंगे, मतदान कराएंगे, बूथ को जीतेंगे। मैं एक बार फिर इतनी विशाल संख्या में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।